Hello student, this is your social science teacher. Today we will learn the chapter our civil services. हमारी सिविल सेवाएं. You have learned that the ministers are in charge of running the country and the states, but a handful of ministers cannot do all the work. They only plan what is to be done and decide how it is be done. The people who actually get the work done are officers who are employed by the government. These officials form the civil services and are called civil servants. They are appointed, not elected, so they do not change with every elections, which ensure that the work of government continues smoothly. स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि सरकार का सारा काम या देश में सारा कार्य जो मंत्री होते हैं वो करते हैं, लेकिन मंत्री जो होते हैं वो केवल देश के लिए प्लान बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। एक्चुअल में डे टू डे जो कार्य होता है उसको करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते हैं जिनको अधिकारी बोलते हैं, और यही लोग मिलकर के सिविल सेवा का निर्माण करते हैं। ये लोग अपॉइंट किए जाते हैं, नौकरी दी जाती है इनको, इस इलेक्टेड नहीं, चुनाव नहीं किया जाता इनका, और काफ़ी सालों के लिए, तकरीबन 20 से 30 सालों तक के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सर्विसेज. There are different civil services for various kinds of government work. Based on which government they work under, they can be grouped under central, state and all India services. For example, the Indian Revenue Services (IRS) is one of the many central services. Its officers look after the collection of taxes and work only under the central government. The Indian Forest Service is one of the 3 all India services. Its officers manage our forest resources and can work anywhere in India, either under a state government or the central government. The state have their separate civil services. In this chapter we will discuss these 3 services in greater detail. बहुत प्रकार की गवर्नमेंट सर्विसेज होती है, लेकिन 3 प्रकार की सर्विसेज हैं। एक है सेंट्रल सर्विस, एक है ऑल इंडिया सर्विस और एक है स्टेट सर्विस। सेंट्रल सर्विस का मतलब होता है केंद्रीय सेवा। ऐसे ऑफिसर जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों में या केंद्रीय विभागों में कार्य करते हैं उनको केंद्रीय सेवाएं बोली जाती है। जैसे कि IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। ये लोग पूरे देश में जो वित्त मंत्रालय है उसके लिए टैक्स वसूलने का काम करते हैं, टैक्स बनाने का काम करते हैं और वित्त व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। दूसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, भारतीय वन सेवा है। ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, मतलब ये अपॉइंट तो सेंटर के द्वारा किए जाते हैं लेकिन कार्य राज्यों के लिए करते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों की अपनी खुद भी सेवाएं होती हैं जिसको स्टेट सर्विसेज कहते हैं। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS. In the days when we were under the British, this was known as the Indian Civil Services. Many considered it to be the most important of the civil services. Simply put, to administer means to manage something, and that is the job of this service. It manages the everyday work of the government according to the set of rules. It carries out the plans of the government like getting development work done. तो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मतलब हो गया भारतीय प्रशासनिक सेवा। अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में इस सेवा का नाम भारतीय सिविल सेवा होता था। इस सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो एडमिनिस्टर बोले जाते हैं, प्रशासक बोले जाते हैं। सारा प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं और सरकार के मंत्रालयों के दिन भर डे टू डे वर्क जो होता है, दैनिक जो कार्यकलाप होता है उसको सुचारू रूप से संचालित कराते हैं। IAS ऑफिसर्स आर in charge of different government departments and organizations that deal with different things such as health, education, society and agriculture. The IAS is an all India service, so through IAS officer are employed by the union government. They can work for it or a state government anywhere in India. To start with, an IAS officer is appointed to work in a particular state or union territory. He or she may later be asked to work under the union government. One of the things an IAS officer may do is to look after
a district as its district magistrate DM. A DM is also called a district collector. In addition to the IAS, each state has its own civil services whose officers work under the IAS officer. Okay. तो जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो भारत सरकार के मंत्रालयों के इंचार्ज होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, उसके इंचार्ज होते हैं। आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो ऑल इंडिया सर्विस के होते हैं, मतलब इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये कार्य राज्यों के लिए करते हैं और राज्यों में ये राज्य सरकार के विभाग के हेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम सुना होगा, तो ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिलाधिकारी जिसको बोलते हैं, वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। बाकी सारे अधिकारी उसके अंडर में कार्य करते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस, द इंडियन पुलिस सर्विस टू is an all India service. Each IPS officer is sent to a state where he or she works unless called by the union government for a particular job. In addition to the IPS, each state has its own police service. You might have heard of the police officers called superintendent of police and inspector. While a SP is an IPS officer, the inspector working under him और हर आर ऑफिसर्स ऑफ स्टेट्स पुलिस सर्विसेज। आईपीएस माने भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति सेंटर करता है और ये कार्य राज्य सरकारों के लिए करते हैं। ओके, और ज़िले के जितने भी पुलिस अधिकारी होते हैं सब एक आईपीएस अधिकारी के अंतर्गत काम करते हैं, मतलब पूरे ज़िले का जो पुलिस का अधिकारी होता है वो आईपीएस अधिकारी होता है, उसके अंडर में डीवाईएसपी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं। Perhaps you know about some of things that an IPS looks after: managing peace and order and preventing and investigating crimes are among these. Investigating a crime means finding out who committed it. The Central Bureau of Investigation investigates crimes that affect the whole country or many states. The senior officers of the CBI are IPS officers. IPS officers also lead police units that fights territories. Territories use violence to terrorists use violence to strike terror to get something they want, such as creation of a separate country. आपने आईपीएस अधिकारी के वर्क को सुना होगा। ये ज़िले में शांति व्यवस्था को बनाते हैं, क्रिमिनल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, पूरी शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं और ये जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ने का काम भी करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं। आपने सीबीआई का नाम सुना होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका जो चीफ अधिकारी होता है वो एक आईपीएस अधिकारी होता है। ये पूरे देश के में कहीं भी अगर क्राइम होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करती है, उसकी जांच पड़ताल करती है। द इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। यू मे हैव गेस्ड फ्रॉम द नेम दैट दिस सर्विस डज डन वर्क रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज. IFS officers are posted to different countries where they represent India. They work to improve our ties with our countries in the field of like trade, culture and education. The highest ranking IFS officers in a foreign country is the ambassador. The ambassador and the people working with him or her make up the Indian embassy in that country. भारतीय विदेश सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व विदेशों में करते हैं, ठीक है। भारत का दूसरे देशों के साथ जो संधि है उसको बनाए रखने का काम करते हैं, उनसे मित्रता संबंधी बातों को करते हैं, ठीक है। भारतीय सेवा विदेश सेवा का जो अधिकारी दूसरे देश में नियुक्त होता है उसको एम्बेसडर बोला जाता है, राजदूत, और उसका ऑफिस जो होता है उसको एम्बेसी बोला जाता है, दूतावास बोला जाता है, ओके। और कभी कभी उसको हाई कमिश्नर भी बोलते हैं, भारतीय उच्चायुक्त भी बोलते हैं। IFS ऑफिसर्स आर ट्रेंड फॉर अबाउट 3 years, स्टार्टिंग विद दियर ट्रेनिंग एट द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लेटर ईच ऑफिसर्स is trained in a foreign language. This helps them in their work. Apart from working in Indian embassies abroad,
IFS officer work in India on things related to a foreign countries. The IFS is a central civil services. Unlike officers of all India services such as the IAS and IPS, IFS officers work only under the central government. ओके जो IFS ऑफिसर्स हैं, जब उनकी नियुक्ति होती है तो 3 साल के लिए लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो मसूरी में है, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद वो विदेशी भाषाओं की जानकारी उनको दी जाती है, जिससे वे जो विदेशों में जाके अच्छी तरीके से वर्क कर पाएँ। ठीक है, कुछ IFS ऑफिसर देश के अंदर ये पॉइंट होते हैं जो कि विदेश मंत्रालय में कार्य करते हैं, विदेशी संबंधों को बनाए रखने का काम करते हैं। IFS ऑफिसर केंद्रीय सेवा के अधिकारी होते हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC न्यू दिल्ली होल्ड्स एग्जामिनेशन एवरी ईयर्स to select young men and women for the central and all India services. It also appoints officers from state civil police and forest services to the 3 all India service. ओके तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग जो न्यू दिल्ली में है, ये इन सभी परीक्षाओं को आयोजित करता है अधिकारियों को नियुक्ति देने के लिए। और वो एक बार अपॉइंट कर लेता है, उसके बाद विभिन्न विभागों के जो मंत्रालय हैं वो लोग उसकी ट्रेनिंग दिलाते हैं। ओके तो संघ लोक सेवा आयोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। ओके तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।